امن دشمنوں کا ایک اور بزدلانہ وار، شمالی وزیرستان میں دہشت گردوں کا فوجی قافلے پر حملہ، 7 جوان فرض پر قربان۔ وطن کے محافظوں کا منہ توڑ جواب، فائرنگ کے تبادلے میں 4 حملہ آور ہلاک۔ اضافے کی دونوں سمریاں مسترد، اگلے 15 روز کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کی موجودہ قیمتیں ہی برقرار رہیں گی۔ حکومت کا نرخوں میں کسی بھی قسم کا رد و بدل نہ کرنے کا فیصلہ۔ ٹیکسز کی موجودہ شرح کے مطابق پیٹرول 21 روپے 30 پیسے لیٹر مہنگا کرنے کی سفارش کی گئی تھی۔ لیوی 30 روپے اور جی ایس ٹی 17% شرح کے تحت پیٹرول 83 روپے 50 پیسے لیٹر مہنگا کرنے کی تجویز بھجوائی گئی تھی۔ نئی حکومت کا صارفین کو پہلا جھٹکا، بجلی 4 روپے 85 پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کی منظوری، نرخوں میں اضافہ، اپریل کے فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کیا گیا کہ الیکٹرک صارفین پر اطلاق نہیں ہوگا۔ ملک میں بڑھتی مہنگائی، شہباز شریف معاشی ٹیم پر برس پڑے، باتیں نہ کریں، 15 روز میں نتائج دیں، 2 ہفتے میں اشیاء کی قیمتیں کم ہونی چاہیے، وزیر اعظم کی واضح ہدایت، شہباز شریف سے چیئرمین ایف بی آر کی ملاقات، ٹیکس وصولیوں کے حوالے سے بریفنگ۔ رانا پرویز اشرف بلا مقابلہ اسپیکر قومی اسمبلی منتخب، حکومتی امیدوار کے مقابلے میں کسی نے کاغذات جمع نہیں کروائے، اسمبلی سیکریٹریٹ کی جانب سے نوٹیفکیشن کے بعد حلف اٹھائیں گے، ایوان کا اجلاس کل طلب، ڈیپٹی اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ ہوگی، حکومت اور اتحادیوں کی اپنے ارکان کو اسلام آباد میں موجود رہنے کی ہدایت۔ عمران خان نے پہلے توشہ خانہ قانون تبدیل کیا، پھر باہر سے ملنے والے تحائف دبئی میں فروخت کیے، ایک ہار، انگوٹھی اور گھڑی کم قیمت میں خرید کر بیچی گئی، وزیر اعظم شہباز شریف کی سینئر صحافیوں سے گفتگو۔ جو بھی وزیر اعظم کے تحائف ہیں وہ بھی ڈکلیئرڈ ہیں، جو ان کو ملے ہیں وہ بھی ڈکلیئرڈ ہیں، جو انہوں نے لیے ہیں وہ بھی ڈکلیئرڈ ہیں، سو یہ ریکارڈ کا حصہ ہے، تو وہ ریکارڈ اسلام آباد ہائی کورٹ جس دن بھی مانگے گی وہ وہاں پہ چلا جائے گا، وہ تو گورنمنٹ نے دینا۔ شہباز شریف کو اور کچھ نہیں ملا تو گھڑی کا ایشو لے آئے، کسی دوسرے ملک نے تحفہ دیا جو عمران خان نے خرید لیا، سابق وزیر اعظم نے وہی تحفہ باہر فروخت کر کے کون سا جرم کیا؟ فواد چودھری کا سوال، وزیر اعظم کو ملکی مسائل پر توجہ دینے کا مشورہ۔ اصل کہانی یہ نہیں کہ عمران خان نے گھڑی اور ہار پہلے خریدے پھر بیچ دیے، اسٹوری یہ ہے کہ گھڑی اور ہار حکومت سے کتنے میں خریدے اور کتنے میں فروخت کیے گئے۔ تنخواہ کے سوا سابق وزیر اعظم کا کوئی ذریعہ آمدن نہیں تھا، تحائف کی خریداری کے لیے ان کے پاس پیسے کہاں سے آئے؟ مریم نواز کا ٹویٹ۔ عوام کو پورا توشہ خانہ کا ریکارڈ دیا جائے گا، کفلنگز، گھڑی، انگوٹھی، 14 کروڑ کی مالیت کی چیزیں 2 کروڑ جمع کرا کے لی اور 18 کروڑ میں فروخت کی، تمام چیزوں کے ریکارڈ نکال لیے گئے ہیں۔ گولڈ پلیٹڈ کلاشنکوف مسنگ ہے جو انشاءاللہ بری گالہ سے برآمد کی جائے گی۔ گھڑی اور ہار 2 کروڑ میں خرید کر 18 کروڑ روپے میں فروخت کیے گئے، تفصیلات قوم کے سامنے لائیں گے۔ پہلی بار عدم اعتماد کے ذریعے کرپٹ ٹولے کو باہر کیا گیا، مریم اورنگزیب کی میڈیا ٹاک، ڈاکٹر رضوان ان کے اپنے دور میں چھٹی پر گئے، کسی ریلیف پروگرام کو ختم نہیں کر رہے، نون لیگی رہنما کی وضاحت۔ Pakistan's military spokesperson said that they had no evidence to suggest
the United States had threatened or was involved in the conspiracy to seek the ouster of Imran Khan's government. Your thoughts and comment on this statement? Our message has been clear and consistent on this. There is no truth whatsoever to the allegations that have been put forward. We support the peaceful upholding of constitutional and democratic principles, including respect for human rights. इमरान हुकूमत के खिलाफ कोई साजिश नहीं हुई। तर्जुमान पाक फौज के बयान से मुत्तफिक हैं। इल्जामात में कोई हकीकत नहीं। पाकिस्तान में किसी एक जमात की हिमायत नहीं करते। नई हुकूमत के साथ काम करने के मुंतज़िर हैं। तर्जुमान अमरीकी दफ्तर खारिजा का रद्द-ए-अमल। पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस की समाअत रोजाना की बुनियाद पर होगी। इलेक्शन कमीशन का बड़ा फैसला। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अहकामात की रोशनी में केस 30 रोज के अंदर निपटाया जाएगा। तर्जुमान ईसीपी का एलामिया। पीपल्स पार्टी और नून लीग के केसेस की समाअत भी साथ ही की जाए। तहरीक इंसाफ का मुतालबा। फवाद चौधरी और फरूख हबीब की मीडिया टॉक। हमारा मुतालबा बड़ा वाज़ेह है कि इस केस का जो फैसला है वो पीएमएलएन, पीपल्स पार्टी, पीटीआई का केस साथ चलाया जाए। इनका फैसला भी जो है वो एक वक्त में आया जाए। आप डे टू डे हेयरिंग करना चाहते हैं, करें, हम उसे वेलकम करते हैं, लेकिन वो डे टू डे हेयरिंग सिर्फ पीटीआई की नहीं, वो पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी की भी होनी चाहिए। शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के तहनीती पैगामात पर शुक्रिया। पाक सऊदी ताल्लुकात खुसूसी और गैर मामूली एतमाद के हामिल हैं। मुश्तरका मकासद को पूरा करने के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। वजीर आज़म शहबाज शरीफ का इरादा। वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब कल होगा। अपोजिशन इत्तेहाद की जानिब से हमजा शहबाज उम्मीदवार। तहरीक इंसाफ ने काफ लीग के परवेज इलाही को नामजद कर रखा है। नया कायदे-ए-ईवान मुंतखब करने के लिए इजलास दिन 11:30 बजे होगा। डेप्यूटी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी सदारत करेंगे। पंजाब में वज़ारत आला का इंतखाब डेप्यूटी स्पीकर ही कराएगा। इख्तियारात से मुतालिक सिंगल बेंच का फैसला बरकरार। लाहौर हाई कोर्ट ने काफ लीग की अपीलें खारिज कर दी। अदालत आलिया ने महफूज किया गया फैसला जारी कर दिया। नए वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब। सूबाई असम्बली के इतराफ 500 मीटर की हदूद में दफा 144 नाफिज। 4 से ज़ायद अफराद के इज्तिमा पर पाबंदी। कल पुलिस के साथ रेंजर्स एहलकार भी तैनात होंगे। चौधरी परवेज इलाही से रुकने कौमी असम्बली रियाज सतियाना की मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब से मुतालिक बातचीत। इमरान खान के जलसों ने सियासी मुखालिफिन को परेशान कर दिया। नून लीग का हॉर्स ट्रेडिंग से जीतने का ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। काफ लीगी रहनुमा की गुफ्तगू। गवर्नर पंजाब के लिए मखदूम अहमद महमूद नामजद। पीपल्स पार्टी की क़यादत ने नई जिम्मेदारियों से आगाह कर दिया। मखदूम अहमद महमूद पहले भी इस ओहदे पर काम कर चुके हैं। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के इंतखाब पर हाई कोर्ट का हुक्म इम्तना। सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। फुल बेंच तहरीक इंसाफ की जानिब से दायर रिलीफ की दरख्वास्त पर कल समाअत करेगा। तहरीक इंसाफ कल कराची में अवामी ताकत दिखाएगी। बागे जिनाह ग्राउंड में जलसे की इजाजत मिल गई। इंतजामिया की जानिब से 20 शराइत आयद। असलहे की नुमाइश ममनू। इज्तिमा रात 12 बजे तक खत्म करना होगा। आर्टिकल 63 की तशरीह। सुप्रीम कोर्ट ने सदारती रेफरेंस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच 18 अप्रैल को मुकदमा सुनेगा। नवाज शरीफ को डिप्लोमेटिक पासपोर्ट का इजरा रोकने से मुतल्लिक दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पीर के रोज मामला सुनेंगे।
जमीर अहमद आगाही विंग इस्लामाबाद तैनात। शहजाद सलीम को डीजी नैब लाहौर लगा दिया गया। नए डीजी को चंद माह कबल लाहौर से वफाकी दारुल हुकूमत भिजवाया गया था। मुल्क में लोड शेडिंग और शॉर्टफॉल का मामला। नेपरा का ऑयल की अदम दस्तयाबी और फनी खराबी के बायस प्लांट्स की बंदिश पर शदीद तहफ्फुजात का इजहार। प्लांट सरबराहान ने फीडर्स न होने पर शिकायत के अंबार लगा दिए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से ट्यूनिस के सफीर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दो तरफा ताउन के फरोग समेत मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल। मारूफ समाजी कारकुन बिल्किस ईद भी शदीद अलालत के बायस कराची के निजी हॉस्पिटल में इंतकाल कर गईं। बिल्किस ईदी को रमजानुल मुबारक से 2 रोज कबल दिल का दौरा पड़ा था। वजीर आजम, वजीर आला सिंध और दीगर की जानिब से इजहार अफसोस, खिदमात को खिराज अकीदत। लाहौर में लर्जा खेज वारदात। नशे में धुत बेटे ने फायरिंग करके मां, बाप, बहन और भांजे को मौत के घाट उतार दिया। ससुर और सास को भी गोलियां मारकर अबदी नींद सुला दिया। आबिद नामी मुलजिम गिरफ्तार, पुलिस की तहकीकात जारी। कराची, लाहौर और पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों में बैंक मुलाजमीन का एहतजाज। शहर कायद में स्टेट बैंक हेड ऑफिस के सामने मुजाहरा। वजीर आजम हफ्ते की छुट्टी बहाल करें, मुजाहिरीन का मुतालबा। रूस की यूक्रेन में पेशकदमी जारी। मिसाइल फैक्ट्री पर बमबारी। मारियोपोल में स्टील प्लांट पर कब्जे का दावा। यूक्रेनी हुकाम का मुहाजिरीन की बस पर हमले, 7 अफराद की हलाकत का इल्जाम। सहूनी फोर्सेस का मस्जिद अक्सा पर धावा। आंसू गैस का इस्तेमाल। नमाजियों पर रबड़ की गोलियां बरसा दी। 150 के करीब फलस्तीनी जख्मी। 400 से ज्यादा को गिरफ्तार कर लिया गया। जनूबी अफ्रीका में सैलाब की तबाहकारियां। हलाकतों की तादाद 395 तक पहुंच गई। दर्जनों अफराद लापता। मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां जारी। क्रिकेट दीवानों के लिए अच्छी खबर। पीसीबी ने अप्रैल 2023 तक कौमी टीम के शेड्यूल मैचेस का ऐलान कर दिया। शाहीन 7 टेस्ट, 17 वनडे और 25 टी20 मुकाबलों में इन एक्शन होंगे। वेस्ट इंडियन, इंग्लिश और कीवीज टीम्स की पाकिस्तान आमद भी शेड्यूल। We're racing toward the extinction of our species. Come back. I always come back. और डायनासोर्स ने एक बार फिर दुनिया में तबाही मचा दी। हॉलीवुड एक्शन फिल्म जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन का ट्रेलर रिलीज। मूवी 10 जून को सिनेमा घरों की जीनत बनेगी।